வீட்டுக்கு என்ன மாதிரி மார்பல் போடுறீங்களோ தெரியல, என்ன மாதிரி வர்க்கிஃபை டைல்ஸ் போடுறீங்களோ தெரியல, நீங்க கட்டுற வீட்டுக்கு எவ்வளவு உயரம் வசதியான டைல்ஸ் போடுறீங்களோ தெரியல. ஆனா எங்க வீட்டுல டைல்ஸ் தங்கத்துல குயவன் கையில் களிமண்ணை போல் தேவாவும் கரத்தில் என்னை குயவன். ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் தேவனுடைய அனுபவத்தை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். और हर एक आने वाले दिनों में परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन सारे अनुभवों को उनसे प्राप्त करें. ஆமென். आमेन. அது நடக்கும் பொழுது, और जब वो सारी चीजें होंगी, क्या होंगी? தேவனோடு நடக்கிற, தேவனோடு சஞ்சரிக்கிற அந்த அனுபவத்துக்குள்ள நம்ம நுழைந்த உடனே, और जब हम परमेश्वर के साथ चलने का या फिर एक होने का वो अनुभव को जब हम पा लेंगे, ஒன்றும் குறையில்லாத ஒரு அனுபவத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். और कोई बिना कोई कमी के हम उन सारी चीजों को पा लेंगे. இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே குறைகள் இருக்கு. आज हम सबके पास कुछ ना कुछ कमियां हैं. ஏன்னாக்கா நிறைய நேரத்துல நம்ம குறைகளே பார்க்கிறோம். क्योंकि बहुत सारे समय में हम सिर्फ उन कमियों की तरफ ही हमारा ज्यादा ध्यान दे देते हैं. ஆவியிலே எந்த குறையும் இல்லாமல் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். लेकिन आत्मा में परमेश्वर ने हमें बिना कोई कमियों से रखा है और आशीष किया है. ஆவியிலே பெர்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதுனால இந்த பூமியில, அதாவது நமக்கு தேவையான எல்லாவற்றிலும் அந்த பெர்ஃபெக்ஷன் வரும்படிக்கு தேவன் விரும்புகிறார். क्योंकि आत्मा में जब वो परिपूर्णता है, तभी हमारी जिंदगी में भी वो परिपूर्णता आए, इसलिए हमारे लिए वो सारी परिपूर्णताएं रखी गई है. அதனால சபையில் அவருடைய சரீரத்தில் அவர் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். और इसलिए वही सारी चीजों को कलीसिया में परमेश्वर ने रखी है. Praise God. परमेश्वर का धन्यवाद. என்னுடைய சபை குறையற்றதாய் இருக்க வேண்டும். परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी कलीसिया बिना कोई कमी के बनी Jesus रहे. is working in order to make us perfect before, present us perfectly before the Father. Amen. यीशु मसीह हमको परिपूर्ण करना चाहते हैं ताकि हम पूरी परिपूर्णता में परमेश्वर के सामने खड़े हो सके. Praise God. परमेश्वर का धन्यवाद. அவருடைய சிங்காசனத்தண்டே போய் தைரியமாய் போய் நிற்கிறது, தைரியமாய் பிரவேசிக்கிறது. और प्रार्थना का मतलब ये भी है कि पूरे धैर्य के साथ हम परमेश्वर के सिंहासन के आगे जाके खड़े हो सकते हैं. We go boldly before the presence of God, or boldly before the throne of grace and mercy, amen, of God. और हम पूरे धैर्य से परमेश्वर की उस महिमा भरी और अनुग्रह से भरी हुई सिंहासन के सामने जाके खड़े But when it comes to worship, He comes to our place. Wherever we are, He is there. Amen. लेकिन जब स्तुति और आराधना की बात आती है, तब खुद परमेश्वर हमारी उस उपस्थिति में, आराधना और स्तुति की उपस्थिति में शामिल होते हैं. Worship and praise is the highest kind of prayer. और क्या होता है, स्तुति और आराधना एक ऊंचे पद की एक प्रार्थना करी जाती है. When you praise Him, when you worship Him, you experience God. Amen. Wherever you are worshiping, not just in the church. और जब हम स्तुति और आराधना जहाँ कहीं पे भी करते हैं, कलीसिया में ही नहीं, तब क्या होता है, परमेश्वर खुद उनकी उपस्थिति हमारे बीच में होती है. और हम परमेश्वर की उस उपस्थिति को अनुभव करना शुरू करते हैं. தேவனோடு சஞ்சரித்தார்கள். पासवान ने आगे पहले ही कहा था कि आदम और एवा ने क्या किया था, परमेश्वर की उस उपस्थिति को अपने साथ अनुभव किया था. चल रहे थे. और दूसरे हम देखते हैं, और एक परमेश्वर के सेवक वो थे आनोक. ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்தான். ஆமென். और हम ये भी जानते हैं कि एनोक भी परमेश्वर के साथ चले थे. எவ்வளவு வருஷம் நடந்தான் ஏனோக்கு? कितने साल तक वो एनोक परमेश्वर के साथ चले थे? परमेश्वर के साथ कितने साल चले थे? कोई कह सकता है 300 years or 400 years. 400 साल या 300 साल. Amen. பாருங்க தேவனுடைய பைபிள்ல ஏனோக்கு தேவனோடு எவ்வளவு வருஷம்? 300 வருஷம். 365 days. 365. Amen. Genesis 5 years. Okay, 365 years, 365 வருஷம் ஏனோக்கு தேவனோடு நடந்தானாம். हम देखते हैं कि उत्पत्ति के अध्याय में कहते हैं कि 300
60 पर 5 साल तक अनोक परमेश्वर के साथ चले थे। Praise God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। Hallelujah. Hallelujah. 365 years of walking with God. நம்ம பார்க்கிறோம் 5000 புருஷர்கள் இருந்தார்கள், 5 ரொட்டி 2 மீன் தான் இருந்துச்சு, எப்படி சாப்பிட முடியும் இதுல? जब हम देखते और पढ़ते तो हम पढ़ते हैं, हम कमी से पढ़ते हैं, अरे 5000 पुरुष और यहाँ पे सिर्फ 2 मछलियाँ और 2 मछलियाँ 5 सी रोटियाँ हैं, कमी है वहाँ पे। அன்னைக்கு இயேசுவோடு கூட இருந்தவர்களுக்கு கூட அது ஒரு குறைவாய் காணப்பட்டது. वहाँ पे उन दिनों में जो यीशु मसीह के साथ खुद थे, उनको भी वो कमी वहाँ पे दिखी। அதுக்கு தான் சீஷர்கள் சொல்றாங்க, ஆண்டவரே உங்களெல்லாம் அனுப்பிடலாம் சாப்பாட்டுக்கு செய்யறதுக்கு முடியாது, அதனால உங்ககிட்ட என்ன இருக்குன்ற। और खुद वहाँ पे शिष्य लोग और बोलते हैं कि शिष्य लोग यीशु मसीह कैसे बस यहाँ पे कमी है, सबको भेज देंगे, खाना यहाँ पे नहीं है, सब बहुत सारे लोग हैं। Praise God. परमेश्वर का धन्यवाद। கண்களுக்கு எல்லாருடைய கண்களுக்கும் குறை இருக்கு, दूसरे लोगों के आंखों में यहाँ पे कमी दिखी, ஆனா ஜீசஸுக்கு என்ன கவனிங்க டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாதீங்க, இம்பார்ட்டன்ட் திங்। बहुत मुख्य बात है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ इधर उधर ना देखिए। அவங்களுக்கு எல்லாம் குறைவு இருந்தது, उन सारे लोगों को वहाँ पे कमियां दिखी। இயேசு கிட்ட எவ்வளவு சொத்து இருந்துச்சு? हम और आप जानते हैं यीशु मसीह के पास कितनी संपत्ति थी, कितने घर थे? அப்ப என்ன, அவர் வந்து மனுஷனா தான் இருந்தாரு, மாம்சமா தான் இருந்தாரு। हम देखते हैं कि वो शरीर या फिर देह में थे और मनुष्य थे, அவர்கிட்ட ஒண்ணே இல்ல, और उनके पास कुछ भी नहीं था। இருந்துச்சு, ஏதாவது இருந்துச்சு அவர்கிட்ட? था या नहीं था? कुछ नहीं था। ஹலோ சொல்லுங்க சீக்கிரம் बोलिए, जल्दी बोलिए, यीशु मसीह के पास कुछ था? यीशु की ஏதாவது இருந்ததா? नहीं, कुछ नहीं था। वो भी एक साधारण मनुष्य थे। வீடு இருந்துச்சா? घर था? இல்ல। नहीं। பிசினஸ் இருந்துச்சா? क्या व्यापार था? 12 வயசு வரைக்கும் இருந்திருக்கும்। नहीं, 12 साल तक उनके पास था, लेकिन उसके बाद 30 வயசு மினிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு அவர்கிட்ட எந்த சொத்தும் இல்ல। 30 साल के बाद जब उन्होंने सेवकाई शुरू की, उनके पास कुछ नहीं था। ஆனா 5000 புருஷர்களுக்கு சாப்பாடு போட்டார்। लेकिन क्या होता है, वहाँ पे 5000 पुरुषों को उन्होंने खाना दिया, திருப்பி 4000 பேருக்கு உணவு கொடுத்தார்। और उसके बाद दूसरी बात 4000 लोगों को उन्होंने खाना दिया। இவருக்கும் டாக்ஸ் கட்டினாரு, பீட்டருக்கும் சேர்த்து டாக்ஸ் கட்டினாரு। टैक्स इनको भी अपने आप का भी टैक्स दिया और पतरस का भी टैक्स दिया। மரணத்தின் மீது கூட ஜெயத்தை காண்பித்தார்। और उन्होंने मृत्यु के ऊपर भी जीत को हासिल किया है। கடல் புயல் எல்லாவற்றையும் பார்த்து பேசினார்। பாருங்க, எல்லாம் அவர் எதுவுமே இல்லாம இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் பெற்று அனுபவித்து அவர் வாழ்ந்து காண்பித்தார்। तूफान, बारिश, कुछ भी हो, सारी चीजों को उन्होंने देखकर बात किया। जो कुछ भी नहीं था उसमें भी सब कुछ परिपूर्ण थे वो। आमेन। காரணம், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தேவனோடு கூட நடந்தார்। इन सब का कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ चल रहे थे, பிதாவாகிய தேவனை அனுபவித்தார்। क्योंकि उन्होंने पिता परमेश्वर का अनुभव प्राप्त किया। தேவனோடு நடக்கும்போது, தேவனை அனுபவிக்கும் போது, நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கையில் இன்னொரு கட்டத்திற்கு நாம் செல்லும் பொழுது குறைகளை பார்க்காமல் தேவனுடைய நிறைவை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம்। आमेन। और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीजों को धिक्कारते हैं, तब हम परमेश्वर की परिपूर्णता को और उनके अनुभव को प्राप्त करते हैं। 1000 மலைகளிலே சுற்றி திரிகிற காளைகள், ஆடு, மாடுகள் எல்லாவற்றுக்கும் சொந்தக்காரர் அவர்। आमेन। हजारों चट्टानों में जितने भी जानवर या फिर प्राणी घूम रहे हैं, उस सब के मालिक सिर्फ एक है, वो है पिता परमेश्वर। அவர் உன்னை வைக்க மாட்டார்। आमेन। आपकी कमियों में परमेश्वर आपको नहीं रखेंगे। आमेन। சந்தித்து அவர் அற்புதமாக உன்னை வழி நடத்துவார்। आमेन। और हमारी और आपकी सारी जरूरतों को जानकर वो हमको उसमें तृप्त करने वाले परमेश्वर हैं। கொள்வதற்கும் மிகவும் அதிகமாக உன்னை அவர் ஆசீர்வதிப்பார்। हमारे मांगने से ज्यादा, पूछने से ज्यादा अधिक देने वाले पिता परमेश्वर है वो। எண்ணெயும் மாவும் நிறைந்திருக்கும்। आपके घर में तेल और वो आटा हमेशा घर पूरी से पूरा रहे। வாகனங்கள் கடந்து வரும், और आपके लिए गाड़ियां आएंगी, हमेशा रहेंगी। கட்டடங்கள் கடந்து வரும், और आपके लिए इमारतें बनी रहेंगी। ஜனங்கள் உன்னிடத்திலே வருவார்கள், लोग हमारे आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। ஒட்டகங்கள் நிறைவாய், ஒட்டகங்களோடு கூட நிறைவாக ஆசீர்வாதமும் செல்வமும் உன்னை தேடி வரும் என்று வேதம் சொல்கிறது। पूरे धन दौलत से भरकर हमारे और आपके पास आएगा। आमीन। கடலின் ஐஸ்வர்யம் உன்னை தேடி வரும் என்று சொல்கிறார்। सारी दुनिया की सारी ऐश्वर्यताएं हमारे पास
आएंगे। Amen। சோ ரெண்டாவது கட்டம் என்ன பண்றாரு? சர்ச்சை ப்ராஸ்பர் பண்றாரு. और दूसरे पद में क्या होता है? परमेश्वर कलीसिया को उन्नति में लाते हैं। ஏன் ப்ராஸ்பர் பண்றாருன்னா அதுக்கு காரணம் இருக்கு. क्यों उन्नति में लाते हैं? क्योंकि उसका एक कारण है। அதை நாம் வருகிற வாரத்துல பார்ப்போம். हम इन सारी चीजों को आने वाले हफ्तों में ப்ராஸ்பரிட்டி देखेंगे। எதிர்க்காதீங்க. अपनी उन्नति या फिर बढ़ोतरी को धिक्कारिएगा नहीं। ப்ராஸ்பரிட்டி வந்து தவறான உபதேசம் கிடையாது, வேதத்தின் உபதேசம். आमेन। बढ़ोतरी या फिर उन्नति एक गलत उपदेश नहीं है या फिर सुसमाचार नहीं है, क्योंकि उन्नति और बढ़ोतरी के बारे में शास्त्र में लिखा गया है। பணாசக்காரர்களுக்கு தான் ப்ராஸ்பரிட்டி வந்து தீங்கு. जो पैसे से ज्यादा इच्छा रखता है उनके लिए ही बढ़ोतरी एक बुरी चीज है। தேவ ஆசைக்காரர்களுக்கு ப்ராஸ்பரிட்டி தானா தேடி வரும். आमेन। लेकिन परमेश्वर से इच्छा रखने वालों के लिए बढ़ोतरी खुद आती है। आमेन। உன் இருதயம் தேவனிடத்தில் இருந்தால் ஐஸ்வர்யம் உன்னை தேடி வரும். अगर आपका और हमारा मन और हृदय परमेश्वर के पास है तो बढ़ोतरी खुद हमें ढूंढ कर आएगी। உன் இருதயம் பொக்கிஷங்கள் அதாவது பணம் செல்வத்தின் மீது இருந்தாக்கா தேவன் உன்கிட்ட இருக்க முடியாது. लेकिन अगर हमारा मन और हृदय सिर्फ धन दौलत में बना हुआ हो तो हमारे पास उन्नति और बढ़ोतरी नहीं சோ आएगी। நீங்க அகைன்ஸ்ட் பண்ணாதீங்க ப்ராஸ்பரிட்டி வான்னு சொல்லுங்க. तो आप उन्नति और बढ़ोतरी का विरोध मत कीजिए, लेकिन बोलिए हाँ बढ़ोतरी और उन्नति मेरी है। ப்ராஸ்பரிட்டியை எதிர்க்கிறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பணம் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க. अगर उन्नति को बढ़ोतरी को जो विरोध करते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मेरे पास तो पैसा नहीं है नहीं है नहीं है। வேணுமானக்கா வேணும்னு. अगर चाहिए तो हाँ चाहिए बोलेंगे। ஆமென். பணம் வேணும், பணம் இல்ல அதனால தான் இதை செய்யல, பணம் இல்ல அதனால தான் ஊழியம் நடக்கல அப்படின்னுவாங்க. अगर ऐसे பேசுவாங்க. कमियों में रहने वाले लोग बस ऐसे कर पैसा नहीं था इसलिए ये नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये नहीं बनाया, कलीसिया नहीं बनाया, ये नहीं बनाया। இருக்கிற கொஞ்சத்தை கூட கொடுக்கிறதுக்கு பயப்படுவாங்க. பண ஆசைக்காரங்க. जो पैसा है उसे देने के लिए भी डरते हैं। कैसे लोग पैसे ஏராளமா